वंदे गुजरात। નમસ્તે દર્શક મિત્રો, હું છું ધાર્મિક પુરોહિત. સજ્જ સમુદાય સુરક્ષિત ગામ કાર્યક્રમમાં ગુજરાત રાજ્ય આપત્તિ વ્યવસ્થાપન સત્તામંડળ તરફથી આપ સૌનું હાર્દિક સ્વાગત કરું છું. દર્શક મિત્રો, આપણે જાણીએ છીએ એમ કે આપત્તિ સામેની પૂર્વ તૈયારી એ જ ઉપાય કે આપત્તિ સામે આપણી જેટલી પૂર્વ તૈયારી હશે, જેટલા આપણે સક્ષમ હોઈશું એટલા જ આપણે સુદૃઢ હોઈશું કોઈ પણ પરિસ્થિતિનો સામનો કરવા માટે. તો આ જ ઉદ્દેશ્યને ધ્યાનમાં રાખીને આપણે છેલ્લા 13 અઠવાડિયાથી આપત્તિને સમજવાનો પ્રયત્ન કરી રહ્યા છે, જેમાં આપણે જાણ્યું કે આપત્તિ એ કેટલા પ્રકારની હોય છે, કુદરતી આપત્તિ કોને કહેવાય, માનવસર્જિત આપત્તિ કોને કહેવાય, આપત્તિ આવે છે ત્યારે આપણે શું કરવું જોઈએ, શું ન કરવું જોઈએ, સાથે સાથે જ અગ્નિ એ કેટલા પ્રકારની છે, ફાયર લાગે છે ત્યારે આપણે શું કરવું, શું ન કરવું, ફાયર એક્સટિંગ્યુશર્સ છે એનો ઉપયોગ કેવી રીતે કરવો જોઈએ, સાથે સાથે જ મોક ડ્રીલ એ કેવી રીતની હોય છે, ક્યાં ક્યાં થતી હોય છે, સાથે સાથે જ આપણે જાણ્યું હતું કે એસીઓસી અને ડીઈઓસી એ કેવી રીતનું રહેલું હોય છે. ગાંધીનગર સ્થિત એસીઓસી છે કે સ્ટેટ ઇમરજન્સી ઓપરેશન સેન્ટર, જ્યાં ગુજરાત સરકારને લગત ડિઝાસ્ટરને લગત કામગીરી 24 કલાક 365 દિવસ થતી હોય છે. એવી જ રીતે તમારા જિલ્લાની અંદર કલેક્ટર ઓફિસની બાજુમાં ડીઈઓસી હોય છે, જેને ડિસ્ટ્રિક્ટ ઇમરજન્સી ઓપરેશન સેન્ટર કહેવાય છે, જ્યાં જિલ્લાને લગત જે ડિઝાસ્ટરને લગત જે કામગીરી હોય એ બધી ત્યાં થતી હોય છે. એ પણ 24 કલાક 365 દિવસ ચાલુ હોય છે. તો એની કામગીરી કેવી રીતે થતી હોય છે, ક્યાં ક્યાં થતી હોય છે, એનો તમે સંપર્ક કેવી રીતે કરી શકો છો, તે વિશેની આપણે પ્રાથમિક માહિતી મેળવી હતી. ત્યાર પછી આપણે જાણ્યું હતું કે પૂર્વ ચેતવણી એ કેવી રીતની આવતી હોય છે, ખાસ કરીને જ્યારે અત્યારે વરસાદ ઋતુ ચાલી રહી છે તો આઈએમડી દ્વારા કેવી રીતને વેધર ફોરકાસ્ટ આપવામાં આવે છે, એ કેવી રીતે નેશનલ લેવલથી સ્ટેટ લેવલ ઉપર આવે છે, સ્ટેટથી ડિસ્ટ્રિક્ટથી તાલુકાથી ગામડા લેવલ ઉપર એ કેવી રીતે ડિસિમિનેટ થતું હોય છે, સંદેશા વ્યવહાર કેવી રીતનો થતો હોય છે, ખાસ કરીને કે જ્યારે ભારે વરસાદ કે એવું કશું આવવાનું છે તો 24 કલાક 12 કલાક 6 કલાક 2 કલાકમાં વરસાદ ક્યાં કેવી રીતનો આવવાનો છે, એના લગત જે વિભાગ છે વિભાગ કેવી રીતે કાર્ય કરે છે, તે બધી વસ્તુઓ આપણે જાણી હતી. અને આવા વિવિધ વિષયો ઉપર આપણે છેલ્લા 13 અઠવાડિયાથી આપણે આપત્તિને સમજવાનો પ્રયત્ન કર્યો છે. તો દર્શક મિત્રો, આજે આપણે એવા જ એક વિષય સાથે ઉપસ્થિત થયા છે કે ક્લાઇમેટ ચેન્જ, આબોહવા પરિવર્તન. આવું આપણે સાંભળીએ છીએ કે છાપામાં જોઈએ છે કે દૂરદર્શન કે કોઈ પણ ન્યૂઝ ચેનલમાં નિહાળીએ છીએ કે ભાઈ એ ક્લાઇમેટ ચેન્જની અસરો શું શું થઈ રહી છે. આપણે અનુભવી પણ રહ્યા છે. છેલ્લા 5-10 વર્ષનો તમે જુઓ તો એકદમથી ગરમી પડવી, એકદમથી વધારે વરસાદ પડવો, એકદમથી ઠંડી પડવી, એવા બધા જે પરિવર્તનો એકદમથી જે પહેલાં રૂટીન ન હતા પણ અત્યારે એ બધા એકદમથી આપણે અનુભવી રહ્યા છે. અને જેના કારણે એ દેશ દુનિયા ઉપર તો અસર કરે છે, સાથે સાથે આપણા ઉપર પણ અસર કરે છે. તો એ આબોહવા પરિવર્તન એ કેવી રીતે થાય છે, ખાસ કરીને એની વાસ્તવિકતા એ શું છે અને સમાધાન શું છે, આપણે એવી કઈ કઈ વસ્તુઓ કરીએ કે એ આબોહવા પરિવર્તનના આ જે યજ્ઞ છે એની અંદર આપણે પણ એક આપણી આહુતિ આપી શકીએ, કે આપણે પણ એ રોકવા માટે પ્રતિબદ્ધ થઈ શકીએ. તો એ વિષયને ન્યાય આપવા માટે આજે આપણી સાથે સ્ટુડિયોમાં ઉપસ્થિત છે ડૉક્ટર અનુરાગ કંડિયા સાહેબ, જે પીડીયુ યુનિવર્સિટીમાંથી ગાંધીનગરમાંથી આપણી સાથે ઉપસ્થિત છે. સાથે સાથે દર્શન પટેલ સાહેબ છે, જે જેડા ક્લાઇમેટ ચેન્જ ડિપાર્ટમેન્ટમાંથી આપણી સાથે ઉપસ્થિત છે. તો બંને મહાનુભાવનું આપણે આ કાર્યક્રમમાં સ્વાગત કરીએ છીએ. અને સાથે સાથે જ હું અનુરાગ કંડિયા સાહેબને વિનંતી કરીશ કે આજનો આ જે કાર્યક્રમ છે તે આગળ વધારે. थैंक यू धार्मिक सर. प्रिय दर्शकों, आज हम एक बहुत महत्वपूर्ण विषय पे चर्चा करने वाले हैं कि क्लाइमेट चेंज, उसके क्या असर हुए और मोर इम्पॉर्टेंटली क्या हम कुछ इसमें कर सकते हैं. तो आइए चलते हैं एक छोटी सी प्रेजेंटेशन के साथ. मेरे पास आपके लिए बहुत सारे सवाल हैं और बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो शायद हम अपने जीवन शैली में लाएंगे तो बहुत सारा कुछ परिवर्तन हम खुद महसूस कर पाएंगे. सबसे पहले तो मैं आपको ये एक ऐसा चित्र बताना चाहता हूँ और एक प्रश्न आपसे पूछना चाहता हूँ. क्या आपको ऐसा लगता है कि हम इकोनॉमी और एनवायरनमेंट ये आमने सामने हैं या हम इन दोनों को साथ में लेके चल रहे हैं? शायद आपको महसूस होता है कि जैसे जैसे विकास हो रहा है उसी दर से पर्यावरण कुछ खराब होता जा रहा है. और इसीलिए मैंने एक ऐसा एक चित्र रखा यहाँ पे. क्या हम इस टाइप के मॉडल ऑफ डेवलपमेंट पे जा रहे हैं कि इसी डाल पे बैठे हैं और इसी डाल को काट रहे हैं? तो ये
बिल्कुल सोचने वाली बात है कि अगर ये इस टाइप का डेवलपमेंट नहीं है तो क्यों हमें ऐसा लगता है कि हमारा आसपास का वातावरण खराब होता जा रहा है, डिटोरिएट होता जा रहा है। क्यों हमें ऐसा लगता है कि एयर पोल्यूशन, जो एयर में जो बहुत सारा डिफरेंट टाइप के गैसेस आ रहे हैं, वो जो हमारे जब शरीर में आ रहे हैं, एंटर कर रहे हैं, तो हमारे शरीर कुछ माल फंक्शनिंग कर रहा है। तो कहाँ से आते हैं वो एयर पोल्यूटेंट्स? तो क्या इस टाइप का ही डेवलपमेंट करेंगे? अगर ऐसा ही चलता रहा तो शायद आने वाले टाइम में हमें अपने आप पे, हमारे इस डेवलपमेंट पे और अपने इस जीवन पे ही हमारा क्वेश्चन मार्क हो जाएगा। मैं आपके सामने एक तस्वीर रखता हूँ जिसके दो हिस्से हैं। लेफ्ट तरफ आप देखिए और राइट तरफ, और आपसे पूछता हूँ कि इन दोनों में से आपको कौन सी टाइप की धरती अच्छी लग रही है? क्या ये वाली जिसमें एक स्वच्छ नदी है, कुछ अच्छे पेड़ पौधे हैं, कुछ माउंटेन्स हैं, सूर्य का प्रकाश है, या ये वाली धरती जहाँ पे बाढ़ है, बहुत सारा धुआं है, बहुत सारा पोल्यूटेंट्स आपको दिखते हैं? और अगर आप आंख बंद करके सोचें कि हमें अपनी धरती को किस ओर ले जाना है, तो मेरे हिसाब से हम सब बोलेंगे कि हमें ये जो लेफ़्ट साइड जो तस्वीर है, हमें कुछ इस तरीके की धरती चाहिए। तो ये धरती हमें इसी धरती को ही बनाना है, क्योंकि हमारे पास कोई प्लैनेट बी नहीं है, हमारे पास एक ही धरती है और हमें अपने ही जीवन काल में उसको इम्प्रूव करना है। तो अगर क्लाइमेट क्राइसिस को आप क्लोजली देखें तो ऐसे बहुत सारे शब्द हमारे सामने आएंगे, जैसे हम बोलेंगे राइजिंग सी लेवल, ड्राउट्स, फ्लड्स, हीट के रिलेटेड बहुत सारी डेथ्स, हमारे जो एनिमल्स हैं जो एक्सटिंक्ट हो रहे हैं, गायब हो रहे हैं, बहुत सारी जो फॉरेस्ट फायर्स हैं, बहुत सारे स्टॉर्म, साइक्लोन्स, ये सारी जो आप देख सकते हैं इतने सारे, और खैर बहुत, और इसकी तो लिस्ट बहुत बड़ी है। तो ये सारे जो क्राइसिस है, क्या हम उसको कम कर सकते हैं? तो ये, और कम करने के लिए हमें जानना पड़ेगा कि ये क्यों बढ़ते जा रहे हैं। अगर आप एक छोटा सा डेटा देखें यहाँ पे, तो ये 1917 से लगा के 2025 तक का एक स्टैटिस्टिक्स है, जिसमें पूरे विश्व में जितने डिज़ास्टर्स हुए उसका एक आंकलन है, जिसमें ड्राउट्स, फ्लड्स, अर्थक्वेक, एक्सट्रीम वेदर, एक्सट्रीम टेम्परेचर, वॉल्केनिक एक्टिविटी, लैंडस्लाइड और वाइल्ड फायर, ये अंकित किए गए हैं। आप देख सकते हैं कि 1970 में 100 से भी कम विश्व स्तर पे डिज़ास्टर थे, जो कि बढ़ के लगभग 400 साढ़े 400 के पार 2025 और 2026 में हुए। तो इनका कारण क्या, और क्या इनकी फ्रीक्वेंसी हम कम कर सकते हैं आने वाले टाइम में? ये देखना पड़ेगा। अगर आप सिर्फ टेम्परेचर की ही बात करें तो 2025 वॉज द थर्ड वार्मेस्ट ईयर ऑन रिकॉर्ड। मतलब 2025 का अगर एक एनुअल एवरेज करें तो वो तीसरा गर्म देश था पूरे एक 85 ईयर्स के रिकॉर्ड में। 2024 तो सबसे गर्म ईयर था पूरे 85 ईयर्स में। और इसमें ये भी एक ध्यान रखिए, जो एक जो लाइन आप देख रहे हैं ये 1.5 का, ये वो डिफरेंस है टेम्परेचर का जिसका हमने रेफरेंस लिया है प्री इंडस्ट्रियल एनुअल एवरेज से। तो उस टाइम का टेम्परेचर और इस टाइम के टेम्परेचर का जब हम एक सब्ट्रैक्शन करते हैं तो हमें पता चलता है कि हम 1.5 डिग्री से ऊपर क्रॉस कर चुके हैं। अभी इसी साल अगर आप देखिए, ये 1.5 डिग्री का जो लक्ष्मण रेखा हम लोगों ने तय की थी, जब वो क्रॉस हुई तो कितने सारे डिज़ास्टर्स की फ्रीक्वेंसी बढ़ गई। तो अगर हम अपना ये टेम्परेचर मॉडरेट नहीं करेंगे, अपना ये वाटर मॉडरेट नहीं करेंगे, तो आने वाले टाइम में हमें बहुत सारी आपदाओं का बहुत एक कठिन, एक डिफ़िकल्ट सिनेरियो देखना पड़ेगा, जो कि मानवता के लिए अपने आप में एक प्रश्न हो जाएगा। एक, जैसे हम बोलते हैं, कहर ढा सकता है। तो वो कहर ना ढाए उसके लिए
हमें कुछ करना पड़ेगा। ये तस्वीर शायद आपको बहुत अच्छे से इसमें बहुत आंकड़े वाली एक तस्वीर है। तो आप देखेंगे कि 1980 से लगा के 2019 का एक विश्लेषण किया गया यूनाइटेड नेशंस की तरफ से। सो UNDDRR की जो रिपोर्ट है जिसमें लिखा था कि ह्यूमन कॉस्ट ऑफ डिज़ास्टर, जो कि पब्लिश हुई, तो उसमें आप देखिए कि 1980 से लगा के 1999 में रिपोर्टेड डिज़ास्टर्स कितने थे, सारे डिज़ास्टर्स का एक आंकलन किया गया। तो उसमें था कि 4212, जो कि बढ़ के 7348 हो गए। डेथ्स का देखेंगे तो 1.19 मिलियन से बढ़ के 1.23 बिलियन हो गया। टोटल नंबर ऑफ अफेक्टेड पीपल 3.25 बिलियन से बढ़ के 4.03 बिलियन हो गया। और ये इकोनॉमिक लॉस जो हम सबसे ज़्यादा अच्छे से समझ पाएंगे, 1.6 ट्रिलियन से बढ़ के 3 ट्रिलियन, ऑलमोस्ट दुगना जितना हो गया। तो ये जो डिज़ास्टर्स का जो इम्पैक्ट है वो डेफिनेटली हमारी मतलब हमारी आंखें बाहर निकाल देता है कि इतना सारा डिज़ास्टर्स हो रहा है, तो क्या हम इसके लिए कुछ कर सकते हैं। तो डेफिनेटली पूरे विश्व स्तर पे बातें हुई। 2000 ये 17 डेवलपमेंट गोल्स बनाए गए कि पूरा विश्व इन गोल्स पे काम करे, जिसमें आप देख सकते हैं नो पॉवर्टी, ज़ीरो हंगर, गुड हेल्थ एंड लिविंग, ऐसे करके ऐसे 17 गोल्स का गठन किया गया। और जिसका एक ही उद्देश्य था, क्या हम सस्टेनेबिलिटी के नज़दीक आ सकते हैं, क्या हमारी धरती, हमारी मानवता सस्टेनेबिलिटी के नज़दीक आ सकती है, क्योंकि हमारे पास केवल एक ही धरती है, हम कहीं और जाके बस नहीं सकते। तो हमें जो भी करना है, हमें अपने गाँव को, अपने शहरों को यहीं रह के हमें इम्प्रोवाइजेशन करना है। तो तय हुआ कि कुछ बड़े स्तर पे काम किया जाए। 194 कंट्रीज़ ने मिल के तय किया कि हमारा जो एनुअल इंक्रीज़, हमारा जो इंक्रीज़ ऑफ टेम्परेचर है वो बिल्कुल, अगर हम प्री इंडस्ट्रियल एरा का एक रेफरेंस लें तो तय हुआ कि 2 डिग्री से ज़्यादा नहीं होगा, और 1.5 डिग्री की एक लक्ष्मण रेखा बनाई गई। हालांकि ये अलग बात है कि 2024 में हम ये लक्ष्मण रेखा क्रॉस कर गए, और जैसा आपने वो डिज़ास्टर की स्लाइड में देखा, उसी साल बहुत सारे नेचुरल डिज़ास्टर की जो ऑकरेंस थी वो बढ़ गई। फिर दूसरा हुआ कि हर देश नेशनल डिटरमाइंड कॉन्ट्रीब्यूशंस तय करे कि वो देश क्या कर सकता है। 5 साल के प्लान बनाए जाएं, मिटिगेशन स्ट्रैटेजीज़ जिसमें कि कार्बन सिंक कैसे डेवलप हो, एडाप्टेशन स्ट्रैटेजी कि अगर हमको मालूम है कि कोई आपदा आने वाली है, ये जैसे स्टॉर्म आने वाला है, तो क्या हम उस प्रिपेयर्डनेस में हैं कि हमें 32 घंटे 72 आवर्स या 48 आवर्स पहले अगर हमें सूचना मिल जाए तो हम अपनी जान माल का नुकसान बचा सकते हैं। अगर हमें मालूम है कि बहुत इंटेंस रेनफॉल आने वाली है, तो क्या हमारे जो ग्राउंड वाटर रिचार्ज सिस्टम है, क्या वो तैयार हैं। ऐसी बहुत सारी चीज़ें हम देख सकते हैं जो कि एडाप्टेशन में जा सकती हैं। तो उसके लिए हमें सारे देशों को कार्य करना है। क्लाइमेट फाइनेंस, मतलब इतना सारा अगर हमें जो इंटरवेंशन लाना है, डेफिनेटली उसके लिए बहुत सारी धनराशि की ज़रूरत पड़ेगी। तो तय हुआ कि विकसित देश विकासशील देश के लिए $100 बिलियन पर ईयर की सहायता देंगे। तो ये एक मुद्दा था, और लॉस और डैमेज को किस तरीके से कम किया जाए और अपनी कार्यशैली में किस तरीके से ट्रांसपेरेंसी किया जाए। तो ये सारा कुछ गठित हुआ पेरिस एग्रीमेंट में, और कुछ यही बातें दोहराई गई COP26 में, जिसमें फिर से तय हुआ, फिर से रिविजिट किया गया कि 1.5 डिग्री सेल्सियस से हमें हमारे जो एनुअल टेम्परेचर्स हैं उनका जो डिफरेंस है वो विथ रेफरेंस टू द प्री इंडस्ट्रियल टाइम, सो 1.5 डिग्री से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। क्योंकि हमने 2024 में तो खैर देख ही लिया कि अगर जब क्रॉस करते हैं तो डिज़ास्टर्स एक्सपोनेंशियली बढ़ जाते हैं। और बिल्कुल $100 बिलियन की जो धनराशि तय हुई थी पर साल, वो मिलनी चाहिए, तो विकासशील देश फिर कुछ ऐसे स्ट्रॉन्ग इंटरवेंशंस कर सकते हैं। आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने इसी चलते ये पंच अमृत की
का एक आउटलाइन किया कि इंडिया नॉन फॉसिल एनर्जी कंजम्पशन, नॉन फॉसिल एनर्जी जनरेशन वो 500 गीगावाट तक पहुंच जाएगी 2030 तक। 2026 में तो हम लोग 300 गीगावाट क्रॉस कर गए हैं और हो सकता है डेफिनेटली कि आने वाले 4 सालों में ये 200 गीगावाट का जो गैप है वो भी हम कवर कर लें। इंडिया 50% ऑफ इट्स एनर्जी रिक्वायरमेंट वो रिन्यूएबल एनर्जी के रूप में के उससे करेगी बाय 2030। मतलब सोलर हो गया, हाइड्रो हो गया, विंड हो गया और मोर इम्पॉर्टेंटली बायो एनर्जी, जिस पे बहुत अधिक फोकस है। ये ध्यान देने वाली बात है कि बायो एनर्जी का जो कंट्रीब्यूशन है वो अभी के स्पेक्ट्रम में बहुत कम है, जबकि हमारा देश पॉपुलेशन में, ह्यूमन पॉपुलेशन में, एनिमल पॉपुलेशन में बहुत अधिक है। और बायोगैस जैसी चीज़ तो हमारी संस्कृति का एक हिस्सा है, तो क्यों वो हमारे एनर्जी स्पेक्ट्रम में कम है, ये अपने आप में एक सोचने वाली बात है। तो हो सकता है डेफिनेटली कि बाय 2030 हमारा ये जो बायो एनर्जी का जो फ्रैक्शन है वो सिग्निफिकेंटली बढ़ेगा। तीसरा जो उन्होंने मैंडेट दिया कि 2021 से लगा के 2030 तक जितना भी एस्टिमेटेड कार्बन एमिशन है उससे 1 बिलियन टन कार्बन एमिशन का कम होना है। ये एक हमको गोल दिया गया। और इंडिया की जो कार्बन इंटेंसिटी है ऑफ इट्स इकोनॉमी उसको 45% से कम करना है बाय 2030। और फाइनली एक जो गोल्डन गोल दिया गया है इंडिया को प्रधानमंत्री सर की तरफ से कि हमको 2070 तक नेट ज़ीरो कंट्री बनना है। तो ये आदरणीय प्रधानमंत्री जी की ये जो पंचामृत है ये इस पे देश चल रहा है। और इस टारगेट को अचीव करना मात्र सिर्फ सरकार के लिए नहीं बट हर एक इंसान, हर एक सिटीज़न का एक कर्तव्य बनता है। और इस पे मैं ये बोलना चाहूँगा कि जब आप ये सब करेंगे तो इसका मॉनेटरी बेनिफिट और हेल्थ बेनिफिट भी आपको महसूस होगा, जो आने वाले कुछ स्लाइड्स में मैं आपको समझाऊँगा। तो ये नेट ज़ीरो बाय 2070 ये बिल्कुल एक बहुत बड़ा संकल्प हमें लेना है और इससे हम तो सुरक्षित होंगे ही होंगे बट आने वाली जो हमारी पीढ़ियां हैं वो भी एक अच्छे देश और अच्छी धरती पे रहेंगे, ऐसा हमारा एक सपना है। तो आबोहवा परिवर्तन, क्लाइमेट चेंज, अगर इसको डेफिनेशनली देखा जाए तो इससे ये समझ में आता है कि जो छोटे शिफ्ट्स हैं टेम्परेचर के, एंथ्रोपोजेनिक हो या जैसे मैन मेड हो या नेचुरल हो, लेकिन अब जब हम ध्यान से देखते हैं तो हमको पता चलता है कि बहुत लार्जली ये मैन मेड हैं। तो अगर आप एक CO2 के एमिशंस की बात करें तो आप देख सकते हैं कि 1750 में कितना एमिशंस था, कितना कॉन्सेंट्रेशन था कार्बन डाइऑक्साइड का, जो कि वो धीरे धीरे बढ़ते अब हमारा जो कार्बन डाइऑक्साइड का जो कॉन्सेंट्रेशन है वो 425 पार्ट्स पर मिलियन से अधिक है, जो कि 200 पार्ट्स पर मिलियन था 1970 में। तो ऑलमोस्ट कार्बन डाइऑक्साइड की कॉन्सेंट्रेशन दुगनी हो गई है। और कार्बन डाइऑक्साइड एक हीट ट्रैपिंग गैस है। ये बात बिल्कुल सोचने जैसी है कि अगर कार्बन डाइऑक्साइड होती ही नहीं तो शायद हमारे धरती पे जीवन ही नहीं होता। बट अभी हो क्या रहा है कि इसका जो एक्सेस कॉन्सेंट्रेशन है, इसके चलते जो टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है वो एक चिंता का विषय बन गया है। सो अगर आप इसमें भी देखें कि जैसे जैसे अगर एक टेम्परेचर का आप देखें तो अगर एक एनॉमली अगर देखें तो इस साल से हमारा जो एनुअल टेम्परेचर राइज है वो बढ़ते अब हम अराउंड 1.21 और अगर हम 2023, 24 और 25 का एक एवरेज करें तो वो भी 1.5 डिग्री जो प्री इंडस्ट्रियल टाइम था उससे वो एक्सीड कर रहा है। फिर यहाँ पे मैं आपसे एक प्रश्न करना चाहूँगा कि जैसे ही मैंने कहा कि कार्बन डाइऑक्साइड का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ेगा और उससे टेम्परेचर बढ़ेगा, और अगर आपसे पूछूं कि टेम्परेचर बढ़ने से
सबसे बड़ा जो इम्पैक्ट है वो क्या होगा, तो जो स्कूलों में हमें बताया गया है कि टेम्परेचर बढ़ने से जो सबसे बड़ी चीज़ होगी वो है मेल्टिंग ऑफ द ग्लेशियर्स, और मेल्टिंग ऑफ द ग्लेशियर्स से इंक्रीज इन द सी वाटर लेवल्स, समुंदर का जो स्तर है वो बढ़ जाएगा। तो यहाँ पे मैं एक प्रश्न आपसे करूँगा, और इसको मैंने बोला है कि ये क्लाइमेट चेंज का एक आधा सच है कि जो समुंदर में जो इंक्रीज होता है पानी का कंटेंट, वो मात्र CO2 के कंसंट्रेशन के इंक्रीज से है। तो इसकी जो दूसरी साइड है वो शायद बहुत लोगों ने या बहुत लोगों को पता नहीं है या बताया नहीं गया है। इसीलिए मैंने लिखा कि आबो हवा परिवर्तन का आधा सच जो है वही आपको पता है, और दूसरा आधा सच शायद मैं आपको बताने का प्रयास कर रहा हूँ। यहाँ पे टाइटल दिया है कि वो ज़मीन का वो पानी जो ज़मीन से निकाला गया और ज़मीन में वापस नहीं गया, तो फिर वो कहाँ गया। तो अगर आप देखें कि हमारे जो नेचुरल ग्राउंड कवर हैं वो इस तरीके से हैं, लेकिन अब अर्बनाइजेशन के चलते हमने उनको क्या कर दिया, हमने बिल्कुल उनको इम्परवियस कर दिया। अब इस पर जब बरसात का पानी गिरता है तो डेफिनेटली वो ज़मीन के अंदर नहीं जाता, और आप देख सकते हैं कि थोड़ी सी भी बरसात हुई तो हमारे शहर कुछ इस तरीके से हो जाते हैं। तो सारे शहरों का कुछ इस तरीके से दृश्य बन जाता है। तो एक तरफ तो हम बोलते हैं कि हमारे शहर ऐसे बाढ़ों में डूब गए, और दूसरी तरफ हम बोलते हैं अक्रॉस कि हमारा जो ग्राउंड वाटर का जो स्तर है वो दिन प्रतिदिन गिरता जा रहा है। तो फिर ये दोनों चीज़ों को अगर हम मिला के सोचें कि ये सारा जो पानी जो कि बाढ़ के रूप में है, और वो पानी जो ग्राउंड वाटर से निकाला और कभी ग्राउंड वाटर में नहीं गया, तो ये सारा पानी एक्चुअली कहाँ गया? ये पानी गया समुंदर में, और वन ऑफ द रीज़न जो समुंदर का जो राइज करना है वो इट इज़ बिकॉज ऑफ दिस पर्टिकुलर रीज़न। तो क्या इसका कोई हम ऑप्शन कर सकते हैं? हमने तो उसको दर्जा दे दिया स्टॉर्म वाटर का। मेरे हिसाब से तो सिविल इंजीनियरिंग की डिक्शनरी में ये वर्ड होना ही नहीं चाहिए। ये वर्ड एक अभिशाप है कि हम बता देते हैं कि हमने शहर ऐसे डिज़ाइन किए, हमने गांव ऐसे डिज़ाइन किए, हमने स्टॉर्म वाटर की फैसिलिटी दी, और ये स्टॉर्म पानी गिरा तो हमने उसको इकट्ठा करके और बाहर फेंक दिया, और फिर हम रोते हैं कि हमारे ग्राउंड वाटर में पानी कम हो गया, हमारे तालाब सूख गए और हमारे कुएं सूख गए। तो जब तक हम इस वर्ड को अपनी डिक्शनरी से नहीं हटाएंगे, और जब तक हम अपने रेन वाटर का आदर नहीं करेंगे, शायद हमारी आने वाले टाइम में हमें बहुत भयानक स्थिति देखनी पड़ेगी। ये ध्यान में रखना चाहिए कि सारी जीवन की जो उत्पन्न जो होती है वो पानी के उसमें होती है। सारी जो सिविलाइजेशंस का जो जन्म हुआ वो रिवर्स के आसपास हुआ। खुद अहमदाबाद का ही आप एग्जाम्पल ले लीजिए, वो साबरमती के किनारे हुआ। इंडस वैली सिविलाइजेशन देख लीजिए। तो जितनी भी सिविलाइजेशंस आप देखते हैं तो वो पानी तो डेफिनेटली एक बहुत इम्पॉर्टेंट स्रोत है। हम चांद पे भी जाते हैं तो क्या खोजते हैं? हम खोजते हैं कि क्या वहाँ पानी है। तो अगर इतना ही अगर इम्पोर्टेंस हम पानी का रखते हैं तो डेफिनेटली हमें पानी का आदर तो करना ही चाहिए। अगर अपनी संस्कृति में भी देखें तो पानी का तो इतना इम्पोर्टेंस है। आप कोई भी पूजा करते हैं डेफिनेटली वहाँ एक छोटा सा कमंडल रखते हैं या एक छोटा सा ऐसा वेसल रखते हैं जिसमें पानी होता है, और जैसे ही आरती ख़त्म होती है हम ऐसा उसको निछावर करके सारे श्रद्धालुओं पे डालते हैं, और वो जो पानी जो हमारे आँखों पे पड़ता है, हमारे जो शरीर पे पड़ता है, तो हमें ऐसा अनुभव होता है कि वो एनर्जी हमारे में ट्रांसफ़र हुई। आप साधुओं को देखिए, वो कुछ न लिए हों, बस हाथ में कमंडल तो लिए ही रहते हैं। किसी को आशीर्वाद देना हो या किसी को श्राप देना हो, वो पानी के थ्रू करते हैं। तो हमारी तो संस्कृति में पानी का इतना इम्पोर्टेंस है। फिर हम आज इस स्थिति में क्यों पहुंच गए, ये एक्चुअली सोचने वाली बात है। तो
तो इसको अगर हम वापस देखें कि पानी का हम किस अच्छे से हम इसको इस्तेमाल कर सकते हैं, इसको हार्वेस्ट कर सकते हैं, तो सच में आने वाले टाइम में एक बहुत अच्छे भविष्य की हम कल्पना कर सकते हैं। अब जैसे अब ये एक एग्जांपल मैं बता रहा हूँ, इतनी पेविंग करने की यहाँ पे क्या ही ज़रूरत थी। और इसमें आप देखिए बीच में जो छोटा सा हमने एक पेड़ लगाने के लिए जो ऑप्शन रखा गया होगा, वही आसपास में इतनी हीट होने के कारण ये पेड़ भी नहीं लग पाया। तो अगर इस तरीके के ऑप्शंस ही रखना है तो शायद अब एक इसी को हम बोल सकते हैं, ये अनसस्टेनेबल डेवलपमेंट का एक एग्जाम्पल है। अब ये जो स्लाइड आप देख रहे हैं, क्या ऐसा नहीं हो सकता? तो आप सब बोलेंगे कि बिल्कुल हो सकता है। तो मेरा आप लोगों से ये प्रश्न रहेगा कि अगर बिल्कुल ये ऐसा हो सकता है तो हो क्यों नहीं रहा? हमारी उसमें इस इम्प्लीमेंटेशन करने में ऐसी क्या अड़चन आ रही है कि हमें हर जगह ऐसे पेमेंट्स नहीं दिखते जिसमें मोर देन 50 to 60% ये घास लगी है और थोड़ा सा ही कंक्रीट है या थोड़ा सा ये इम्परवियस है। मतलब अगर इस पेमेंट पे अगर बारिश हो तो मोर देन 60% 70% एरिया फैसिलिटेट करेगा कि ये जो समुद्र जो बरसात का पानी है वो धरती के अंदर जाए, ना कि एक इम्परवियस सरफेस जिसके चलते हमारी अर्बन फ्लडिंग हो जाए। तो ये काल्पनिक सॉल्यूशंस में नहीं बता रहा हूँ, ये बिल्कुल अपने अहमदाबाद के शहर का ही एक फ़ोटोग्राफ है। लेकिन जब मैं आसपास और एक 5 किलोमीटर 10 किलोमीटर का जब मैं चक्कर लगाता हूँ तो मुझे ऐसा लगता है कि ये सिर्फ मैंने वहीं देखा, बाकी तो जगह सब कुछ कंप्लीटली पेव्ड है। तो क्यों ऐसा नहीं हो रहा है? क्या इसको हम किस तरीके से चेंज करें? तो मैं म्यूनसिपल कॉरपोरेशन से भी आग्रह करूंगा कि वो भी कुछ इस तरीके का अपने कार्यशैली में लाएं कि अगर इम्प्लीमेंटेशन करना है पेवर का तो बिल्कुल परमिएबल पेवर विथ दिस टाइप ऑफ कॉन्सेप्ट ही आगे करें, जिससे कि हम डेवलपमेंट भी कर पाएंगे और अपने रेन वाटर का आदर भी कर पाएंगे। एक ये आपको एक छोटी सी ऐसी 4 स्लाइड का एक संकलन दिखाता हूँ। आपने देखा होगा कि हमारी ये छोटी छोटी तलावड़ी हैं। अब ये छोटी तलावड़ी हैं क्योंकि ग्राउंड वाटर का हम बहुत एक्सट्रैक्ट करते हैं और ग्राउंड वाटर रिचार्ज नहीं होता, तो ये तलावड़ी सूख जाती है। अब ये तलावड़ी सूख जाती है तो बिल्कुल ये लो लाइंग एरिया हो जाता है। अब ये लो लाइंग एरिया है, इसको हम बड़ी आसानी से फिल कर देते हैं और फिर थोड़े टाइम के बाद इसमें एक स्ट्रक्चर आ जाता है। तो पानी था, पानी गायब हो गया और वहाँ पे आ गया स्ट्रक्चर। अब पानी एक वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटीफुल कंज्यूमर ऑफ हीट है, जो जैसे जो सूर्य की गर्मी जैसे ही पानी पे पड़ती है पानी भाप बन जाता है, और इस पूरे प्रोसेस में पानी से पानी का जो भाप बनने का जो प्रोसेस है उसमें एनर्जी कंज्यूम होती है। अब पानी ही नहीं रहेगा तो वो एनर्जी जो ऊपर सन से आ रही है वो कहाँ जाएगी? तो वो कन्वर्ट हो जाती है हीट में, जो कि आपको अपने शरीर पे लगती है, जिसको हम बोलते हैं सेंसिबल हीट। तो वो सेंसिबल हीट का दर्जा ले लेती है। अगर वो लेटेंट हीट का दर्जा ले तो शायद हमको इम्पैक्ट नहीं करेगी, लेकिन वो सेंसिबल हीट बन जाती है। और जैसे ही सेंसिबल हीट हुई हम उस अनकंफर्टेबल जोन में चले जाते हैं। अगर टेम्परेचर 40 डिग्री सेल्सियस को क्रॉस किया तो आपको बहुत गर्मी लगने लगती है और फिर आप एयर कंडीशनर्स का सहारा लेते हैं। और जैसे ही आपने एयर कंडीशनर का सहारा लिया और आपने अगर उसका जो एनर्जी जनरेशन है, उसका जो एनर्जी आता है वो फॉसिल फ्यूल से है, तो वहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड का जनरेशन होगा। और ये जो हीट आप अपने रूम से बाहर फेंकेंगे वो हीट तो वहीं रहेगी, क्योंकि उसको कंज्यूम करने वाला कोई नहीं है। अगर आसपास कुछ वाटर बॉडीज़ होंगे, अगर आसपास कुछ वेजिटेशन होगा, तो उसमें से जो निकलता वाटर होगा वो हीट से इंटरेक्ट करेगा और फिर वहाँ पे टेम्परेचर कम होगा। अगर आप ये एग्ज़ाम्पल देखें, ये तो मैं आपको हीट आइलैंड्स की बात कर रहा हूँ। और हाँ, ये एक ग्राफ है जो आपको शायद
ज़्यादा समझ में आएगा कि जैसे जैसे ये ब्लू और ग्रीन कवर जो मैं बता रहा था कि आसपास का जो एरिया है आपका, अगर ब्लू कवर नहीं, मतलब जो पानी नहीं है, जहाँ पे वेजिटेशन नहीं है, तो फॉर सेम थर्मल कंफर्ट आपका जो एनर्जी कंजम्पशन है वो बढ़ता जाएगा। और इसमें आपका कंफर्ट, जैसे आपने तय किया कि आपको कंफर्टेबल लगता है 27 डिग्री सेल्सियस पे आपके रूम के अंदर, बाहर अगर ज़्यादा टेम्परेचर होगा तो वो 27 डिग्री लाने में जितनी एनर्जी खर्च होगी, वो अगर बाहर का टेम्परेचर बहुत बढ़ जाएगा तो उसी 27 डिग्री सेल्सियस लाने में आपको दुगनी तिगनी एनर्जी खर्च होनी पड़ेगी। मतलब ये जो एनर्जी कंजम्पशन ऑफ द सिटी जो बढ़ रहा है, ये कोई फ्रेश डेवलपमेंट के लिए नहीं बढ़ रहा है, ये सेम थर्मल कंफर्ट की अटेनमेंट के लिए बढ़ रहा है, जो कि सच में एक चिंता का विषय है। कि जैसे अगर हमारी जनसंख्या बढ़ रही है और अगर वो फ्रेश डेवलपमेंट में अगर एनर्जी कंज्यूम होती है तो अच्छी बात है, लेकिन सेम जनसंख्या सेम एंटिटीज़ के साथ अगर उसकी एनर्जी कंजम्पशन बढ़ रही है तब ये चिंता का विषय है। खैर, इस बात पे तो रिसर्च भी होनी चाहिए कि ऐसे कौन से एरियाज़ हैं जिसमें इस टाइप के पैटर्न्स देखे जा सकते हैं, और क्या उस पे एक एनर्जी कंजर्वेशन का एक अलग से मुहिम चलाई जा सकती है। तो अब क्या करें? तो डेफिनेटली जैसे मैंने लिखा है, स्पॉन सिटी का जो कॉन्सेप्ट है वो अभी खोजना पड़ेगा कि हम अपने शहरों में किस टाइप का एक स्पॉन्ज का सिस्टम डेवलप कर सकते हैं। और ये कोई काल्पनिक नहीं है, ये अपने ही शहरों में, अपने ही आसपास हम देख सकते हैं कि ऐसे एग्जाम्पल्स मौजूद हैं, लेकिन वो अक्रॉस क्यों नहीं है। आप एक छोटी सी बिल्डिंग है, अगर वो रेन वाटर हार्वेस्टिंग कर सकती है तो वो क्यों वहाँ पे रेन वाटर हार्वेस्टिंग नहीं हो रहा है। अगर हम इस तरीके से छोटी छोटी तालावड़ी, वेजिटेशन, रेन वाटर हार्वेस्टिंग, वाटर पॉन्ड्स, ये सब अगर हम करें तो आप देख सकते हैं कि हमारे शहरों में जो वाटर सेंसिटिविटी है वो बढ़ जाएगी। और जैसे ही वाटर सेंसिटिव हमारे शहर होंगे, अपने आप से टेम्परेचर कम हो जाएगा। टेम्परेचर कम हो जाएगा तो अपने आप से एनर्जी कंजम्पशन कम हो जाएगा, हमारी नेचुरल प्रोडक्टिविटी बढ़ जाएगी। ये एक पूरा सीक्वेंस है। तो इस सीक्वेंस में जाना चाहेंगे या वो सीक्वेंस में कि अगर हम सेम थर्मल कंफर्ट के लिए हम ज़्यादा एनर्जी कंज्यूम कर रहे हैं, वो हीट घर रूम के बाहर जा रही है, वो फिर टेम्परेचर बढ़ा रही है, और वो एक जाल है। तो वो एक जाल में फंसना चाहेंगे या यहाँ पे एक खूबसूरत एरिया में जाना चाहेंगे। अब जैसे ही आप पानी का आप आदर करेंगे, जैसे आपने छोटी सी तालावड़ी बनाई, उसमें एक छोटा सा वाटर फाउंटेन का कॉन्सेप्ट किया, तो आप देखेंगे कि आपके यहाँ का एयर पोल्यूशन भी इम्प्रूव होगा। पानी एक तीर से दो निशाने, गर्मी से भी जीत पाएंगे और एयर पोल्यूशन से भी जीत पाएंगे, क्योंकि वाटर बॉडीज़ अगर पार्टिकुलेट मैटर से जब इंटरफेस करेंगे तो अपने आप से उसको हैवी कर देंगे और अपने आप से वो पार्टिकुलेट मैटर नीचे आ जाएगा। अगर वो नीचे नहीं आएगा, अगर वो हवा में ही रहा और हवा में रहते हुए आपके शरीर के अंदर चला गया तो आपके शरीर के लंग्स में चला जाएगा। आपकी लंग्स में अगर चला गया तो एयर एक्सचेंजिंग कैपेसिटी जो आपकी लंग्स की है, जिसको हम बोलते हैं कि जैसे आपने सांस लिया और जो आपका जो कार्बोहाइड्रेट्स है, तो कार्बोहाइड्रेट्स प्लस ऑक्सीजन जो आपको एनर्जी प्लस कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर बनाता है, तो उसमें जो एनर्जी जनरेशन होती है तो वही आपकी कम हो जाएगी। तो आप खुद में महसूस करेंगे कि आपकी एनर्जी लेवल कम है, आप कुछ कम काम कर सकते हैं। तो ये कहाँ से शुरू हुआ? ये हुआ शुरू आपके शरीर के अंदर वो पार्टिकुलेट मैटर चला गया, जो अगर पानी अगर बाहर होता और कुछ ऐसे वाटर फाउंटेन होते तो शायद आपकी हवा एक कुछ बेटर होती और फिर आप कुछ ज़्यादा एनर्जेटिक फील करते। तो वाटर सेंसिटिव अगर हमें शहरों को बनाना है तो डेफिनेटली हमें ये सारी कॉन्सेप्ट्स हमको अप्लाई करने पड़ेंगे, और ये हमको हमारे गोल नंबर 11 और गोल नंबर 13 पे नज़दीक लेके जाते हैं, सस्टेनेबल सिटीज़ एंड कम्युनिटीज़ और क्लाइमेट एक्शन। अब मैं आपको एक इसी क्लाइमेट एक्शन के चलते मैं आपको एक बात बताना चाहूँगा कि बहुत बार ऐसा सोचते हैं कि
क्या मेरे एक पेड़ लगाने से ग्लोबल वार्मिंग का इशू सॉल्व हो सकता है? अब ग्लोबल वार्मिंग एक विश्व स्तर का प्रॉब्लम है और मेरा तो इंटरवेंशन बहुत लोकल है। तो कई बार हम रिलेट नहीं कर पाते हैं। हम सोचते हैं कि मेरे एक बूंद से ये घड़ा क्या ही भर पाएगा, तो मुझे ये करने की ज़रूरत ही नहीं है। तो बहुत बार ये कैंपेन, ये जो ट्री प्लांटेशन का जो कैंपेन है, जो ग्लोबल वार्मिंग के पर्सपेक्टिव से लगाया जाता है, वो बहुत बारी फेल कर जाता है, क्योंकि उसमें हम अपने आप को रिलेट नहीं कर पाते। तो अब ये इसका जो इसको मैंने दर्जा दिया कि ये आधा सच है, तो इसका पूरा सच क्या है? तो अगर आप देखें कि अब मैं इसकी छोटी सी एक कहानी आपको बताऊंगा। ये एक अहमदाबाद शहर है। इसमें ये जो आप जो लाल में देख रहे हैं, ये रिलेटिव टेम्परेचर है, जिसको हम बोलते हैं अर्बन हीट आइलैंड इफेक्ट। तो ये 5 डिग्री बिकॉज ऑफ अर्बनाइजेशन यहाँ पे अधिक है इन कंपैरिजन टू ये वाला टेम्परेचर। और अभी हम बात कर रहे हैं लैंड सरफेस टेम्परेचर की। तो अभी हमने देखा कि यहाँ से यहाँ पर हम जाते हैं तो हमारा 5 डिग्री सेल्सियस बढ़ जाता है। अब इस एरिया में अगर मैं कुछ ऐसा कॉन्सेप्ट्स लाऊं, जैसे कि अगर हमने वेजिटेशन का किया कि वेजिटेशन हम इसमें इस एरिया में इंस्टॉल करें, वेजिटेशन ग्रो करें, और उससे जो वो ट्रांसपिरेशन होगा तो उस चलते यहाँ का टेम्परेचर कम होगा। तो इसका सबसे बड़ा फ़ायदा किसको होगा? इसका सबसे बड़ा फ़ायदा होगा मुझे, क्योंकि मेरे आसपास का जो टेम्परेचर है वो कम हो जाएगा। तो ये वाला जो प्लांट ट्री है, ये सबसे पहले तो इम्पैक्ट आता है मेरे आसपास में, मेरे जो हीट आइलैंड्स हैं। मुझे ये लाल कलर को ब्लू कलर करना है, तो मुझे इतना प्लांटेशन करना है कि इतना ही वो ट्रांसपिरेशन हो कि अपने आप से टेम्परेचर कम हो जाए। और जैसे ही ये टेम्परेचर कम होगा, इसका सबसे बड़ा जो लाभार्थी होगा वो होऊंगा मैं। और अगर ये पूरे शहर ऐसा इंटीग्रेट करेंगे, तब हम कह सकते हैं कि ये ग्लोबल वार्मिंग का हम एक प्रॉब्लम एड्रेस करेंगे। तो ये पूरी कहानी है। हमें सिर्फ इतना और इतना ही बताया जाता है, लेकिन बीच की ये जो कड़ी है, ये आपको जोड़ती है कि ये पूरा सीक्वेंस है, प्लांट अ ट्री, लोकल वार्मिंग, फिर ग्लोबल वार्मिंग। इसको अगर मैथमेटिकली दृष्टि से देखें कि लोकल वार्मिंग जो छोटी छोटी जगहों पे है, ये मैंने जो लिखा ना dx, dy एंड dz, ये एक वॉल्यूम को दर्शाता है। तो वो -इन्फिनिटी से +इन्फिनिटी अगर हम करें, जिसको हम बोल सकते हैं कि ये पूरा ब्रह्मांड आ गया यहाँ पे, और ये लोकल वार्मिंग आ गई, और इसको अगर हम इंटीग्रेट करें, तब हम कह सकते हैं कि हम एक लोकल वार्मिंग के इशू को एड्रेस करते हैं। मतलब ये हासिल करने के लिए हर एक का कंट्रीब्यूशन होना ज़रूरी है। और यहाँ मैं कहना चाहूँगा कि ये कंट्रीब्यूशन एक फिलेंथ्रोपिक दृष्टि से तो देखना ही चाहिए, बट इसमें आपका पर्सनल बेनिफिट तो है ही है, जो शायद आप लोगों ने कभी महसूस नहीं किया होगा। तो उसके लिए मैं एक एग्जाम्पल देना चाहूँगा। आपके सामने एक चित्र है जिसमें एक ही घर को मैंने 2 बार मैं मेंशन किया है, लेकिन इसके सिनेरियो 1 में मैंने यहाँ जो वेजिटेशन है वो सिनेरियो 2 में गायब कर दिया। अब मैं आपसे पूछता हूँ कि अगर इन दोनों घरों का एनर्जी कंजम्पशन कंपेयर करें, फोकसिंग एयर कंडीशनिंग, तो किस घर में एयर कंडीशनिंग बिल कम आएगा, सिनेरियो 1 या सिनेरियो 2 में? तो बहुत सारे लोग बोलेंगे कि सिनेरियो 1 में एनर्जी कंजम्पशन कम होगा। कम क्यों होगा? क्योंकि आसपास पेड़ लगे हुए हैं, इसके चलते हमारे यहाँ ठंडक है, और ये ठंडक हमारी एनर्जी कंजम्पशन को कम करता है। तो इसको अगर हम, ये जो पेड़ है, क्या हम इसको एक नेचुरल एयर कंडीशनर का दर्जा दे सकते हैं क्या? और क्या ये पेड़ जो अगर नेचुरल एयर कंडीशनर है, तो क्या हम इसको एक मनी पेड़ की दृष्टि से देख सकते हैं क्या? ये मैं इसीलिए बोल रहा हूँ क्योंकि पैसा शायद अपन ज़्यादा अच्छे से समझ पाते हैं। तो जैसा ही ये पेड़ मनी पेड़ के रूप में दिखा, शायद हम इसकी ज़्यादा देखभाल करेंगे। और ये क्वालिटेटिवली तो आप ही ने आंसर मुझे दिया कि ये वाला जो सिनेरियो 1 वाले जो घर हैं, उसमें एनर्जी कंजम्पशन कम होगा। तो ये जो पेड़ लगाने का जो कार्यक्रम है,
ये सिर्फ विश्व की प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए नहीं है, ये आपके एनर्जी कंजम्पशन कम करने के लिए भी उतनी ही कारगर है। विश्व का तो प्रॉब्लम आपके प्रॉब्लम से सॉल्व हो ही जाएगा। ऐसा अगर सब लोग करें तो विश्व का प्रॉब्लम तो अपने आप ही डिसअपियर हो जाएगा। लेकिन प्रॉब्लम कहाँ आती है? हमारा ये पहला कदम ही हम नहीं ले पाते, क्योंकि हम तो सोचते हैं कि ये पेड़ तो हमने पूरे वर्ल्ड के लिए लगाया, फिर ना हम इसका ध्यान रखते हैं। तो अगर एनर्जी कंजम्पशन से अगर ये लिंक हो जाए तो डेफिनेटली हम सब इसका कुछ ज़्यादा अच्छी तरीके से ध्यान रखेंगे। अब हम बात करते हैं घरों की। अभी तो मैंने घर के बाहर जो पेड़ है उसकी बात करी। ये एक दीवार है, ये जब मैं डबलिन गया था तब वहाँ पे मैं ऐसी गली में घूम रहा था तो मुझे ये दीवार दिखी जो कि बहुत हृदय स्पर्शी लगी मुझे, वाकई में बड़ी खूबसूरत थी। और इसको अगर हम एक एनर्जी के पर्सपेक्टिव से भी देखें तो इस रूम में एनर्जी कंजम्पशन डेफिनेटली कम होगी, क्योंकि ये दीवारें हीट कंडक्शन द हीट इंसुलेटर अधिक है, हीट कंडक्शन इसमें कम होता है। बट अगर आप अपने शहर में अपने गांव में देखें तो क्या हमें ऐसे बहुत एग्जाम्पल्स मिलते हैं क्या कि ये ऐसी एक लिविंग वॉल क्या हमारे शहरों में, क्या हर शहर में ऐसी बहुत सारी लिविंग वॉल्स हैं क्या? मैंने अहमदाबाद में देखा, बिल्कुल मुझे दिखी ही नहीं। तो क्या हमारे शहरों में ऐसी लिविंग वॉल हो सकती है क्या? आप बोलेंगे कि ये बहुत बड़ा सिविल इंजीनियरिंग के लिए एक चैलेंज है। अगर चैलेंज है तो मैं चाहता हूं कि सिविल इंजीनियरिंग कम्युनिटी इस चैलेंज को स्वीकार करे। मैं चाहता हूं कि इस पे काम हो, क्योंकि ये जो लिविंग वॉल है ये एनर्जी कंजम्पशन को भी कम कराएगा, ये बाहर के माइक्रो क्लाइमेट को भी मॉडरेट करेगा, ओवरऑल एनवायरनमेंट में इसका बहुत बड़ा योगदान होगा। तो क्यों नहीं है, ये सवाल है, और कैसे हो सकता है, ये एक चैलेंज है। अगर आप आगे देखें रूफ, तो कितना ऐसा हमारा जो शहर है जिसमें सारी ये जो टेरेसेस हैं वो वेकेंट पड़ी हुई हैं, तो क्या वहाँ पे रूफटॉप गार्डन का निर्माण नहीं हो सकता क्या? अगर सोलर पैनल लगे हुए हैं तो सोलर पैनल और रूफटॉप गार्डन का इंटीग्रेशन क्या नहीं हो सकता क्या? बहुत सारी जगह पर देखा गया है, तो क्यों नहीं एक रेवोल्यूशन के रूप में इसको देखा जाए? जैसे ही आपका ये यहाँ का जो गार्डन निर्मित होगा तो इसके नीचे की जो स्टोरी है, जो रूम्स हैं, उसमें अपने आप में एक एनर्जी कंजम्पशन में बड़ी घटोती आएगी। तो एनर्जी कंजम्पशन में भी हम जीतेंगे। और यहाँ पे जो प्लांटेशन में जो पानी यूज़ होगा, अगर वो ट्रीटेड वेस्ट वाटर का अगर यूज़ किया जाए, क्योंकि हम तो ZLD की बात करते हैं, ज़ीरो लिक्विड डिस्चार्ज, आज तो हर जगह यही मैंडेट है, नो सॉलिड वेस्ट, नो लिक्विड वेस्ट, तो हर जगह ज़ीरो का ही है। हमको नेट ज़ीरो लाना है, 2070 तक एमिशंस को नेट ज़ीरो लाना है। तो अगर नेट ज़ीरो लाना है तो ये छोटे छोटे प्रयास तो हमें करने ही पड़ेंगे, अदरवाइज़ वो पानी को हम कैसे मैनेज करेंगे, हम वो एमिशंस को कैसे मैनेज करेंगे? तो ये बहुत इम्पॉर्टेंट पार्ट है। अब जैसे यहाँ पे आप देखिए, ये बहुत छोटा सा एग्जाम्पल है, शायद आपने महसूस भी किया होगा कि बहुत सारे ऐसे जो रोड्स हैं जिसके आजू बाजू आपको बहुत अच्छा प्लांटेशन दिखता है, लेकिन ऐसा क्या पूरी रोड्स में आपने देखा है क्या? तो आप बोलेंगे कि नहीं, थोड़े से स्ट्रेच में देखा था, फिर बाकी नहीं देखा। तो मेरा म्युनिसिपल कॉरपोरेशन से आग्रह रहेगा कि क्यों नहीं हमारी सारी रोड्स और हाईवेज इस तरीके से ग्रीन हो जाएं। ये जो रोड्स हैं, अभी तो उनको हीट रिवर्स का दर्जा दिया जाने लगा है। इतनी रोड्स गर्म हो जाती हैं, और उस गर्म रोड पे जब हमारे व्हीकल्स ट्रैवल करते हैं तो जो टायर्स का डिटोरिएशन होता है वो तो खैर अलग है। टायर अपने आप में एक बहुत बड़ा वेस्ट है, क्योंकि अगर वो 5 साल 6 साल अगर टायर यूज़ होता है तो इसके बाद जो उसका जो एज अ वेस्ट जो बन जाता है, तो क्या हम उसकी लाइफ स्पैन इंक्रीज कर सकते हैं क्या? तो ये एक बहुत बड़ा प्रश्न है। तो ये बहुत सिंपल सी बात है, लेकिन हम देखते हैं कि हमारे शहरों में ऐसी सड़कें नहीं हैं। तो क्यों नहीं है, ये
कम्युनिटी को भी सोचना है, म्यूनिसिपल कॉरपोरेशंस को भी सोचना है, और इस पे अगर हम काम करें तो डेफिनेटली एक बहुत अच्छा इम्प्रूवमेंट हम देख सकते हैं। तो ये एक छोटा सा एक मिला जुला चित्र है जिसमें हमने ऐसा कहा है कि कुछ ग्रीन स्पेस होनी चाहिए जो बहुत परवियस हैं। रेन वाटर हार्वेस्टिंग का तो अक्रॉस हमें कॉन्सेप्ट लाना चाहिए। डिस्ट्रिक्ट हीटिंग एंड कूलिंग का कोई अगर कॉन्सेप्ट हो, रूफटॉप वेजिटेशन हो, लिविंग वॉल्स हो, ये ऐसी छोटी छोटी चीज़ें हैं जो अगर डिस्क्रीट लेवल पे करेंगे तो मास लेवल पे जब उसका इम्पैक्ट असेसमेंट होगा तो वाकई में कुछ बहुत इंटरेस्टिंग हमको देखने मिलेगा। अब एक बहुत इम्पॉर्टेंट मैं आपको बात बताने जा रहा हूँ जो कि सच में आपको चौंकाएगा। यहाँ पे मैंने लिखा है कि अगर फूड वेस्ट को अगर हम एक कंट्री का दर्जा दें तो वो थर्ड लार्जेस्ट ग्रीन हाउस गैस एमिटर बनती है। मतलब जितना भी हमारे घरों से जो फूड वेस्ट आता है वो जो एनारोबिक क्योंकि वो फूड वेस्ट आता है, फिर वो गाड़ी लेके आती है, गाड़ी उसको एक लैंडफिल में डालती है, लैंडफिल में लेयर बाय लेयर जब उस पर सामान आता रहता है तो नीचे वाली लेयर में एनारोबिक कंडीशंस जनरेट हो जाती हैं। एनारोबिक कंडीशंस के चलते मीथेन जनरेट होती है, लीचेट जनरेट होता है। जो मीथेन जनरेट हुई वो जब रिलीज़ होती है तो वो एटमॉस्फेयर में जाती है, और ये हमें ध्यान रखना चाहिए कि मीथेन इज़ 26 times stronger than carbon dioxide for when we talk about global warming potential। तो वो 26 से 28 गुना CO2 से अधिक पावरफुल है। तो अगर वो मीथेन एटमॉस्फेयर में गई तो हीट ट्रैपिंग को वो एक्सेलरेट करेगी। और ये मीथेन कहाँ से जनरेट हुई? ये जनरेट हुई ऑर्गेनिक फूड वेस्ट से, जो कि हमारे घर से निकला और एक लैंडफिल में गया। तो क्या कर सकते हैं इसको? तो ये जो आपने इसको क्या हम कुछ परिवर्तित कर सकते हैं? क्या ऐसा हो सकता है कि हम ये वाली जो चेन आपने देखी ये गायब हो जाए, हमारे यहाँ गाड़ियाँ ना आए, हम कुछ और तरीके से कुछ मैनेज करें? ये अगर करें तो डेफिनेटली जैसा मैंने इसमें लिखा इस स्लाइड में कि रिड्यूस फूड वेस्ट टू फाइट क्लाइमेट चेंज। मतलब ये डेफिनेटली ये एक बहुत डुएबल सी चीज़ है। अगर घर घर में एक ऐसा आंदोलन हो कि हमारे घर से ऑर्गेनिक वेस्ट नहीं जाएगा। खैर हमारी तो संस्कृति ही हमें सिखाती है कि अन्न भगवान है। आज का चावल अगर बच गया तो कल हम उसको कर्ड राइस के रूप में खा लेते हैं। खाकड़ा जो गुजरात का फेमस है, रोटी बच गई तो उसको खाकड़े के रूप में तब्दील कर दिया जाता है, और खाकड़े की तो शेल्फ लाइफ 10 दिन है। अगर दूध फट गया तो उसको फेंकते नहीं हैं, उसका पनीर बना लेते हैं, और जो वो मठा बचता है उसकी कड़ी बन जाती है। अगर आप ये देखें, ये अचार, ये आम का अचार हम साल भर खाते हैं। तो हमारे यहाँ तो ऐसी अनगिनत पद्धतियाँ हैं जिससे कि हम फूड को कभी वेस्ट नहीं करते। हमारे यहाँ जो ऑर्गेनिक वेस्ट जो जनरेट होता है वो हम एनिमल्स को भी देते हैं, लेकिन आजकल तो ऐसा हमें देखने को ही नहीं मिल रहा। वो सारा कुछ सीधा एक गाड़ी में आता है और गाड़ी जाती है लैंडफिल एरिया में, वहाँ डंप करती है, और ऑर्गेनिक वेस्ट को एनारोबिकली डिकम्पोज होने पे मजबूर होना पड़ता है, जहाँ से मीथेन गैस का जनरेशन होता है और ग्लोबल वार्मिंग में जाता है। तो ये बहुत सारी इम्पॉर्टेंट बातें हैं जो कि हमें सच में सोचनी चाहिए। अब एक बहुत इम्पॉर्टेंट विषय पे मैं चर्चा करता हूँ। जैसे मैंने खाने की बात करी, अब आती है हमारे मकानों की बात। तो जैसे ही हम मकान और कुछ अर्बनाइजेशन की बात करते हैं और कुछ कंस्ट्रक्शन की बात करते हैं, हमारे दिमाग में 2 शब्द आते हैं, स्टील और सीमेंट। ये दोनों ही बहुत एनर्जी इंटेंसिव सब्सटेंसेस हैं, और ये एनर्जी इंटेंसिव सब्सटेंस होने के कारण बड़े नॉन फ्रेंडली हैं। लेकिन हमारे पास एक्चुअली इनका विकल्प ही नहीं है, या कहना चाहिए कि इसका विकल्प हमें खोजना पड़ेगा। तो इसी के लिए मैं सामने रखता हूँ वंडर दैट इज़ बैम्बू। तो अब आप बोलेंगे कि बैम्बू तो एक पुअर मैन मटीरियल है। तो मैं यहाँ पे आपसे पूछना चाहूँगा कि ये बैम्बू को पुअर मैन मटीरियल का दर्जा कैसे दिया गया? ये एक बहुत ये एक मैप बहुत ध्यान से देखिएगा।
ये वो जो हरा हरा जो मैंने दिखाया है, ये वो जगह है जहाँ पे बैम्बू कल्टीवेट होता है। तो यहाँ पे बैम्बू ग्रो होता है। यहाँ पे आप देख सकते हैं लैटिन अमेरिका में, अफ्रीका में, इंडिया में, चाइना में, तो यहाँ पे बैम्बू की पैदावार होती है। अब और आप देख सकते हैं कि यहाँ पे खासकर जो जो यूरोपियन पार्ट है, जो हमारा वेस्टर्न पार्ट ऑफ द वर्ल्ड है, यहाँ पे यहाँ पे यूरोप ग्रो नहीं करता। तो अब जब यूरोपियंस ने हमारे ऊपर, जो वेस्टर्न ने हमारे ऊपर शासन किया, तो क्योंकि उन्होंने अपने यहाँ बैम्बू देखा नहीं था, तो हमारे यहाँ से, हमारी डिक्शनरी से ही बैम्बू को गायब कर दिया और इंट्रोड्यूस कर दिया ग्लास। आज हम देखते हैं कि ग्लास की इमारत को हमको लगता है कि बड़ा बड़ा अच्छा बिल्डिंग है, कांच की बिल्डिंग है। कांच की बिल्डिंग का तो बिल्कुल मैं सख्त विरोधी इसीलिए हूँ क्योंकि हम तो एक गर्म देश हैं। हम तो हमारे टेम्परेचर्स को इंटीरियर में हम ठंडा रखना चाहते हैं। यूरोप में टेम्परेचर्स कम है, वहाँ पे उनको टेम्परेचर बढ़ाना है, तो इसीलिए वो ग्लास का उपयोग करें। बट हमारे यहाँ तो खुद ही टेम्परेचर्स अधिक हैं जोग्राफिकली। तो हमारे यहाँ तो लोकल ऐसे ग्रीन इंजीनियरिंग मटेरियल्स का इस्तेमाल होना चाहिए जिससे हमारा इंटरनल टेम्परेचर्स कम रहे। अगर आप, तो हमने तो बैम्बू को नकार दिया, बट आप ऋग्वेद के पन्ने जब पलटाएंगे तो आपको वहाँ दिखेगा कि एक सभ्यता के लिए ऐसा लिखा गया है कि आशीर्वाद दीजिए 100 बैम्बू कल्म्स का, तो बेस्टो अपॉन अस 100 बैम्बू कल्म्स। तो ये तो ऋग्वेदा में मेंशन है। अगर आप देखें कि कृष्ण ने बांस को ही क्यों चुना बांसुरी के लिए, कुछ तो बात रही होगी खास कि भगवान श्री कृष्ण ने बांस को बांसुरी के लिए किया। तो ये जब मेरे टीचर ने मेरे से पूछा तो सच में मेरे पास कोई आंसर ही नहीं था कि जब कृष्ण इसको अपनी बांसुरी के लिए यूज़ कर सकते हैं, तो क्या हम एक आम इंसान अपनी डे टू डे एक्टिविटीज़ में या स्ट्रैटेजीज़ में इसका इस्तेमाल नहीं कर सकते क्या? तो कृष्ण ने तो बांस का हाथ थामा, बट हमने थामा हाथ स्टील और सीमेंट का। अगर आप वाल्मीकि की रामायण देखें तो उसमें भी आपको ऐसा ही जिक्र मिलता है कि जो कुटिया बनाई गई, उसमें भी जो लक्ष्मण जी ने जो कुटिया बनाई, उसमें भी बांस का इस्तेमाल है। कौटिल्य के अर्थशास्त्र में भी आपको बहुत ऐसे बांस के व्यापार का उल्लेख मिलता है। तो इतना समृद्ध तो था हमारा बांस का सब चीज़, फिर गायब क्यों हो गया? क्योंकि शायद हमारे ऊपर इस तरीके से शासन किया गया कि ये सारी चीज़ें हमारी डिक्शनरी से ही निकाल दी गई। ध्यान से अगर आप इस स्लाइड को देखें कि बैम्बू वेस्टलैंड में भी पैदा होता है। 160 मिलियन हेक्टेयर वेस्टलैंड जो हमारी कंट्री की हैं, उसमें अगर हम बैम्बू प्लांटेशन करें तो हमें वो एरिया हम रिक्लेम कर सकते हैं। लेकिन इसके पहले डेफिनेटली हमें सोचना चाहिए कि हम बैम्बू का किस तरीके से बहुत अच्छे से उपयोग कर सकते हैं। अगर वो आंसर्स, वो रिसर्च हमारे पास है और उसके हमारे पास डिलीवरेबल्स हैं, तब तो ये स्ट्रैटेजी बहुत लाभदायक होगी। तो इस पे डेफिनेटली हमें काम करना है, क्योंकि बैम्बू तो हमारी सभ्यता का एक अभिन्न अंग है। तो अगर उस पे हम काम नहीं करेंगे तो डेफिनेटली हम बहुत कॉम्प्रोमाइजिंग स्थिति में रहेंगे कि हमने अपना ही एक लोकल इंजीनियरिंग मटेरियल को नकार दिया। लेकिन ये वाली जो स्लाइड है वो सच में बहुत आपको बहुत खुश करेगी कि बैम्बू से ही एयरपोर्ट का ये पूरा बैम्बू से ही बैंगलोर का एक एयरपोर्ट बनाया गया, जिसको यूनेस्को का ऑनर मिला एज मोस्ट ब्यूटीफुल एयरपोर्ट इन द वर्ल्ड, सबसे खूबसूरत एयरपोर्ट दुनिया का, जो कि बैम्बू से बनाया गया। मतलब बैम्बू एज ए कंस्ट्रक्शनल मटेरियल तो उसने अपना यहाँ पे भी साबित किया। और ऐसा अगर आप असम में जाएंगे तो आपको ऐसे कई घर मिलेंगे जिनकी लाइफ स्पैन 70, 80, 100 साल से अधिक है। आज हम देखते हैं कि 50, 60 साल का कंक्रीट का स्ट्रक्चर भी जवाब देने लगता है। तो वहाँ पे तो 70, 80, 100 साल के भी ऐसे घर हैं जो कि बैम्बू से बनाए गए हैं। तो क्या थी वो साइंस?
वो हमें वो पन्ने वापस पलटने पड़ेंगे, वो रिसर्च हमको करनी पड़ेगी, वो मेन फ्रेम में हमें वो लाना पड़ेगा। अपने ही देश में हमें 1000 से ऊपर हमारे बैम्बू के टाइप्स हैं, तो सब पे हमारी अगर ये पकड़ होगी तो हम उसके वो प्रॉफिटेबल पॉइंट्स निकाल पाएंगे और हम आगे लेके जाएंगे। तो ये तो बात हुई कंस्ट्रक्शनल मटेरियल की। अब मैं एक बहुत इम्पॉर्टेंट जोन में जाऊंगा जिसमें एक कंप्लीट स्पेक्ट्रम ऑफ लाइफ के बारे में, जो कि आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने कहा है कि मात्र एक चीज़ या दो चीज़ करने से नहीं, हमको एक लाइफस्टाइल हमें ऐसी करनी है जो कि नेचर के इर्द गिर्द हो। उन्होंने मिशन लाइफ का यही गुजरात से उसको लॉन्च किया था, और वो में ऐसी बातें हैं जो कि हमें पालन करनी चाहिए, जो कि हमारे लिए बहुत लाभदायक हैं। सो लाइफस्टाइल फॉर एनवायरनमेंट, मिशन लाइफ। तो मिशन लाइफ का जो उन्होंने संदेश दिया पूरे विश्व के लिए, और तो क्या हम उस संदेश का कुछ पालन कर रहे हैं? तो कुछ ऐसे क्वेश्चंस हैं मेरे आपके लिए, जिनको हमने दिया कि क्लाइमेट एक्शंस, हम क्या कर सकते हैं। बहुत बार ऐसे बोलते हैं कि अभी ये वातावरण का इम्प्रूव करना है तो ये तो सरकार करे। सरकार तो कर ही रही है, लेकिन क्या हम उसमें योगदान कर रहे हैं? और क्या वो योगदान क्या हम इसीलिए कर रहे हैं कि विश्व का इम्प्रूवमेंट होगा? क्या हम ये ध्यान रख रहे हैं कि इससे हमारा भी इम्प्रूवमेंट होगा? बहुत बार हम इसको फिलैंथ्रोपिक दृष्टि से देख लेते हैं। मेरा आपसे प्रश्न रहेगा कि क्या हम रेन वाटर हार्वेस्ट कर रहे हैं, जो मैं पहले बात कर रहा था। और बहुत खूबसूरती से अगर आप देखें तो हमारे एंशिएंट विजडम में तो बहुत आदर दिया गया है, कहीं और जाने की ज़रूरत नहीं है। आप रानी की वाव पाटन में देखिए, क्यों उस वाव का निर्माण किया गया था 800 साल पहले, जब तो इतना पॉपुलेशन भी नहीं था, इतनी पानी की किल्लत भी नहीं थी, बट शायद हमारे पूर्वजों को मालूम था कि कितना इम्पॉर्टेंट है रेन वाटर। क्या हम किसी को गिफ्ट करते समय क्या हम एक छोटा सा सैपलिंग दे सकते हैं क्या? क्योंकि ये हम जीवन दे रहे हैं किसी को। मेरे रूम में अगर एक छोटा सा प्लांट रहेगा, ऐसे 5 प्लांट्स रहेंगे, तो मुझे ऑक्सीजन मिलेगी, और मोर इम्पॉर्टेंटली मेरी कार्बन डाइऑक्साइड कहीं और ना जाके वो प्लांट्स सिक्वेस्टर करेंगे। तो ये एक छोटा सा बैलेंस मैं अपने एक छोटे से रूम में भी कर सकता हूँ। इसकी तो मेरी बात हुई कि क्या हम ये वेस्ट सेग्रीगेट कर रहे हैं, और मोर इम्पॉर्टेंटली क्या हम कंपोस्टिंग कर रहे हैं क्या? अगर हम कंपोस्टिंग नहीं कर रहे हैं तो सच में वो मीथेन का जो इंक्रीज कॉन्सेंट्रेशन होगा, उसमें हमारा एक बहुत, जैसे मैं बोलूँगा ना, कि इल कंट्रीब्यूशन होगा। तो वो ये वाली सबसे इम्पॉर्टेंट स्लाइड है कि ये जो कंपोस्टिंग हम नहीं करते हैं, वही पत्तियां हम सड़क के किनारे रखते हैं, और उन्हीं पत्तियों को हम जला देते हैं, और वो जो ऑर्गेनिक मैन्योर बन सकता था, अब क्या बन गया है? सोर्स ऑफ एयर पोल्यूशन। यही पोल्यूटेड एयर हमारे शरीर के अंदर जाएगी, हमारे लंग्स में जाएगी, और हमारी एयर एक्सचेंजिंग कैपेसिटी कम करेगी। तो मेरा तो आग्रह और अनुरोध रहेगा म्युनिसिपल कॉरपोरेशन से कि वो तो घोषित कर दें कि ओपन बर्निंग इज बैंड इन ऑल सिटीज, इज बैंड इन ऑल विलेजेस। ओपन बर्निंग तो होनी ही नहीं चाहिए। क्या हम रीयूजेबल वाटर बॉटल इस्तेमाल करते हैं क्या? डू वी कैरी रीयूजेबल वाटर? अगर हम ऐसा नहीं करते तो हम ही अपने ओशंस को इस तरीके से पोल्यूट करेंगे, क्योंकि आपकी एक फेंकी हुई बॉटल डेफिनेटली ओशंस तक, आप जैसे बोलते हैं कि रिसाइकिल हो जाएगी, आप देखिए कि रिसाइकलिंग की कितनी प्रतिशत है। 8 से 10% ही रिसाइकिल हो पाता है, बाकी रिसाइकिल नहीं हो पाता। कलेक्शन एफिशिएंसी भी उतनी कम है। अब तो बिल्कुल डेफिनेटली गुजरात पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड और सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड एक्सटेंडेड प्रोड्यूसर रिस्पॉन्सिबिलिटी के चलते बहुत सारा प्लास्टिक इकट्ठा कर रहे हैं, फिर भी कुछ लिमिटेशंस हैं जो कि, तो इसीलिए क्या सोर्स पे ही प्लास्टिक कम हो जाए? ऐसा अगर हो तो कितनी अच्छी बात हो। इस स्लाइड में आप देखेंगे कि यही मैंने ऐसे एग्जाम्पल्स दिए थे कि क्या हम इसको कम कर सकते हैं। हमारी संस्कृति तो हमें सिखाती है कि जब हम किसी खाना खाने जगह ऐसे गैदरिंग में जाते थे तो केले के पत्तों पे हम लोग खाना खाते थे। अब केले के पत्ते तो गायब ही हो गए। अब
प्लास्टिक आ गया है और प्लास्टिक को डीजनरेट होने में वर्षों लग जाते हैं और वो पोल्यूशन का कारण बनते हैं। तो वो केले के पत्ते कहाँ चले गए? वो हमारी संस्कृति का हिस्सा थे, जो कि पूरा एक ऑर्गेनिक वे से हमारी लाइफस्टाइल थी, बट अब ऐसा नहीं रहा। क्या हम नॉन ट्रांसपोर्ट यूज़ करते हैं क्या? ये तो खैर म्यूनसिपल कॉरपोरेशंस को भी और अपने को दोनों को ही सोचना पड़ेगा कि कितना कंफर्टेबल है हमारा ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम। और लास्ट की एक स्लाइड कि जैसे ही हम लाल बत्ती देखते हैं, क्या हम अपनी गाड़ी स्विच ऑफ करते हैं क्या? क्योंकि वो चालू ही रहती है। अब उससे आपका ईंधन का तो नुकसान होता ही होता है, आपको तो ज़्यादा पैसे खर्च करने ही पड़ते हैं, बट उस कार्य के चलते जो प्रदूषण होता है वो भी एक चिंता का विषय बन जाता है। और एक ये कि जब एक सार्वजनिक जगह से जो व्यक्ति आखिरी में निकलता है, क्या वो लाइट बंद करता है क्या? अब आप सोचेंगे कि एक छोटी सी बात है, इसमें क्या ही बड़ी, लेकिन ऐसा नहीं होता है क्योंकि हमारी ओनरशिप ही कम है। लेकिन ये लाइट जो आपने बंद की तो आपने कहीं CO2 एमिशंस को कम किया। तो अगर इस तरीके से अगर हम डॉक्यूमेंट करें तो बहुत सारी चीज़ें ऐसी है जो हम कर सकते हैं। तो एनवायरमेंटल मैनेजमेंट किसी एक व्यक्ति विशेष का कार्य नहीं है, ये कम्युनिटी एंगेजमेंट है। लेकिन इस कम्युनिटी एंगेजमेंट में एंटायर कम्युनिटी का एक मॉनिटरी और हेल्थ बेनिफिट दोनों हैं। तो ये ध्यान में रख के हमें काम करना चाहिए। और लास्ट में एक क्वेश्चन जो मुझसे हर बार पूछा जाता है कि अनुराग, सस्टेनेबिलिटी क्या एक मिथ है, क्या एक रियलिटी है? मतलब ये सब जब बातें तुमने कही, ये कुछ हो सकती हैं या सिर्फ ये बातें ही हैं? तो मेरा हमेशा से ये कहना है कि ये बातें जो कही है कहीं दूर हैं, हमें सच में इसको इस तक चल के जाना पड़ेगा, तब जाके हम बोलेंगे कि हाँ, हम एक सस्टेनेबल वर्ल्ड में रह सकते हैं। तो हमें भी नहीं मालूम कि हम कितना ऊपर जा सकते हैं जब तक हम अपने ही पंख नहीं खोलेंगे। तो मेरा अनुरोध रहेगा कि बिल्कुल अपने पंख खोलिए, बिल्कुल आसपास देखिए क्या क्या इंटरवेंशंस आप कर सकते हैं। आप तो बेनिफिट होंगे ही होंगे, लेकिन आपकी आने वाली जो जनरेशन्स हैं वो बहुत सारा इसको बेनिफिट करेंगे। धन्यवाद। તો દર્શક મિત્રો, આપણે જાણ્યું કે કેવી રીતે આપણે આપણી પ્રકૃતિ, આપણું પર્યાવરણ આપણે બચાવવું જોઈએ અને આપણા પ્રયાસથી એ શું ફળ આપી શકે એમ છે. સાહેબે ખૂબ સરળ રીતે સમજાવ્યું કે બેક ટુ ધ રૂટ્સ, આપણે આપણી જે પદ્ધતિઓ હતી વર્ષો પહેલાંની એને આપણે પકડી રાખવી જોઈએ. આપણી આજુબાજુને જે પર્યાવરણ છે એને આપણે સુરક્ષિત કરવું જોઈએ, આપણી પ્રકૃતિ છે એને આપણે સુરક્ષિત કરવું જોઈએ. સાથે સાથે જ નાના નાના પ્રયાસોથી પણ આપણે આ બધી વસ્તુઓ કરી શકીએ છીએ. જેમ કે આપણે કોઈ 4 રસ્તા ઉપર વાહન લઈને ઊભા છે અને લાલ લાઇટ છે, તો આપણે આપણું વ્હીકલ છે તે બંધ કરવું જોઈએ. સાથે સાથે જ આપણે વીજળીનો ઉપયોગ નથી કરતા, એ રૂમમાં નથી, તો આપણે વીજળી રોકવાનો પણ પ્રયાસ કરવો જોઈએ. આપણે કોઈને કોઈ વસ્તુ ગિફ્ટ આપી રહ્યા છે ત્યારે શું આપણે એની અંદર કોઈ નાનો છોડ જે એમની ઘરની અંદર કે ઘરની બહાર ઉગાડવા માટેનો હોય એવો ના આપી શકીએ? તો આવી નાની નાની વસ્તુઓ દર્શક મિત્રો એ ખૂબ જ મોટી અસર કરતી હોય છે લાંબે ગાળે. તો આપણા જ આ પ્રયાસથી આપણે પર્યાવરણને બચાવીશું, પ્રકૃતિને બચાવીશું અને આપણી આવનારી જે પેઢીઓ છે એને એક આપણું સુંદર અને સુસજ્જ સુસારું વાતાવરણ આપણે એમને આપી શકીશું. તો દર્શક મિત્રો, આવા જ કોઈ વિષય સાથે આપણે પુનઃ આવતા અઠવાડિયે ફરીથી મળીશું. મને આપશો રજા. નમસ્કાર.